Assalamu alaikum everyone. I hope all of you have been doing all right. We will be talking about the subject political science today. What is its syllabus, how to go about it, uh, what is included in it, paper pattern. We'll be also discussing the pros of the subject, how should we go for preparing it, and comparative analysis with some of the other subjects. So before we move on, let's understand that we will start with the syllabus of the paper. As most of you would already know, political science consists of two papers. Paper 1 is further bifurcated into two portions, portion A and portion B. One portion consists of philosophers, Western political philosophy, and Muslim political philosophy. Western political philosophy, the two classic, Plato, Aristotle, then the power politics, Machiavelli, the three contractualists, the social contract theorists, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Bentham, John Stuart Mill, Mao, Lenin, Marx, Hegel. These are main philosophers in Western philosophy. When it comes to Muslim philosophy, there is Farabi, Mawardi, Ghazali, Iqbal, Khuldoon. These are more important ones from which examiner often asks you. The other portion of paper 1 consists of the general theory of political science, the general concept of political science. This theory, this concept consists the parts: what is state, what are theories of origin of state, what are theories of evolution of state, Islamic concept of state, basic components of state. It also consists of questions on forms of government and forms of state, forms of government, federalism, unitary form of government, presidential, parliamentary form of government, democracy, monarchy, dictatorship. Then in this portion, you'll also find rights and duties, public opinion, propaganda, political parties, these concepts. So it's the easier side and relatively shorter side in paper 1. 50 marks are 50 marks are allocated to theory, the shorter portion. 50 marks are allocated to the philosophers, and there is no bifurcation as far as the paper is concerned between Muslim and वेस्टर्न फिलोसफर्स. पेपर में ये एक ही पोर्शन में मुस्लिम और वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं उन पर क्वेश्चंस एक को भी अच्छे से ढंग से तैयार कर ले तो आप कर सकते हैं. मैं दोबारा वंस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बता देता हूं. पेपर 1 consists of two portions. One portion is political philosophy. Political philosophy में दो साइड्स हैं. एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें दो क्लासिक हमारे थिंकर्स हैं जिनमें एक है प्लेटो और एक है एरिस्टोटल. उसके बाद हमारे पास जो थ्री कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के philosophers हैं, हॉब्स, लॉक और रोसो. Then we have theorist of practical politics, power politics, prophet of power politics जिन्हें हम कहते हैं मैकियावेली. Then separation of power के हवाले से और classification of state के हवाले से मॉन्टेस्क को हम पढ़ते हैं, the French philosopher. यूटिलिटेरियनिज्म के हवाले से हम पढ़ते हैं जेरेमी बेंथम को, उनके साथ जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ते हैं.
मार्क्सिज्म के लिए मार्क्स, माओ, लेनिन की थेरीज हैं और हेगल को हम पढ़ते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर्स में ये लोग इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं और इनको इसी ऑर्डर में हम जो है वो प्रिपेयर भी करेंगे, इसी ऑर्डर में हम इसको प्रिपेयर भी करेंगे। मुस्लिम फिलोसफर्स में अगर हम आ जाएं तो मुस्लिम फिलोसफर्स में फराबी, मावर्दी, खुल्दून, ये तीन लोग हैं क्लासिक्स में। फराबी फर्स्ट समझे जाते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर, मावर्दी गवर्नमेंट के ऊपर पहले एक्सपर्ट समझे जाते हैं मुसलमानों में। खुल्दून की असाबिया की थेरी, हिस्ट्री की थेरी हम सारे जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन कम्स इकबाल। इकबाल में हम खुदी का कॉन्सेप्ट, हिज एवोल्यूशन एज ए पॉलिटिकल लीडर एंड साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर एंड फिलोसफर एट द सेम टाइम, वो हम पढ़ते हैं। गजाली की हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अमीर, उस पर बात करते हैं। ठीक है जी, नहीं, नॉट नेसेसरी, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। लाइक आई सेड कि इसमें बाइफर्केशन नहीं है, तो आप ढंग से अगर 8 to 10 वेस्टर्न फिलोसफर्स और 5 मुस्लिम फिलोसफर्स कर लें तो ये हमारा पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। देन कम्स द सेकंड पोर्शन जो थ्योरी वाला पार्ट है। थ्योरी वाले पार्ट में आसान है, वो कदरे मुख्तसर भी है, इट इज शॉर्ट and it is easier to prepare as well. These are the basic concepts in political science. In these basic concepts, the first concept is state. As we all know that political science deals with state and government. तो जो पहली चीज हम पढ़ेंगे पेपर पार्ट 2 में, वो है concept of state, evolution of state, theories of state, theories of origin and evolution, Islamic concept of state हम पढ़ेंगे. What is the difference between Islamic and Western concept of state? We will also talk about the concept of sovereignty and what role does it play in a state, and what are the different doctrines of or different types of sovereignty, characteristics, limitations on sovereignty as well. So we will be talking about them as well. So this is paper 1. But I would, when we start doing it, we would start with the second portion first, the part where we would study what is political science, and then state, and then forms of government, presidential, parliamentary, unitary, federal, democracy, monarchy, वगैरह. And then we'll go to the rights and duties part 2 to cover it. Once that basis is strong, once we understand the sovereignty wala part and all that, once we understand these basic concepts, it will be easier for us to comprehend philosophers. It is not advisable to start philosophers right away. So it is not wise to start with philosophers right away. My suggestion would be to start with basic concepts and then move to philosophers Western, and then move to Muslim philosophers in a chronological order, so that we are better able to understand and comprehend the subject in a more efficient way. Then comes paper 2. Paper 2 consists of constitutions, political systems of the world. The political systems of the world are the UK Constitution, the US Constitution, French Constitution, and the German Constitution. 30 marks are allocated to this portion. Then we have the Turkish Constitution, the Chinese Constitution, we have the Indian Constitution, we obviously have the Pakistani Constitution, and we have Iranian Constitution, and we have the Malaysian Constitution. When it comes to constitutional law, there is no Malaysia and Germany, but there is the Constitution of Russia
in constitutional law when it comes to constitutional law for CSS. So this is one part, and we start usually with the Constitution of UK, the concepts in UK Constitution, because primarily it's the mother constitution and the mother parliament of the world as well. Then we move on to the American Constitution, which obviously is the main constitution when it comes to presidential form of government, and when it comes to the representative democracy in written constitutions. Representative democracy in written constitutions. So as we all know, the American Constitution is the oldest surviving written constitution that is still going on. Leading constitution यही है, ठीक है. The other part in paper 2 is consisted of organizations, different organizations you have to study. वो हम करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो हमने यहाँ भी पढ़नी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है. फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी का एक पोर्शन है, हाउ इट इज डिटरमिन्ड, हाउ इट इज मेड, व्हाट इज द प्रोसेस, ये हम पढ़ते हैं. तो मोर और लेस ये वाला सिलेबस है. इसमें भी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट political science से कितना cover up होगा. Again, the answer to that is that political science and constitutional law only have one constitution in difference, that the Constitution of Russia. Political science paper 2 too thoroughly, बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी की जरूरत आपको होगी पॉलिटिकल साइंस से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कवर करने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ज्यादा डीपर स्टडी है, ज्यादा अप्लाइड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है, वहां आर्टिकल्स, केस लॉज वगैरह की ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है. दैट इज डीपर स्टडी ऑफ दैट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अच्छी तैयारी से हम पॉलिटिकल साइंस को कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की एवरेज तैयारी के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को शायद कवर नहीं कर सकते. सिलेबस एक जैसा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आप उतना ज्यादा अप्लाइड साइड नहीं पढ़ते जितना आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ते हैं. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल साथ ले रहे हैं तो आप सिलेबस बहरहाल ओवरलैप करता है. अगर आप साथ ले रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको बहुत अच्छा फिर एक ही दफा प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाए और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए भी प्रिपेयर हो जाए. ठीक है जी. MCQs, the answer to MCQs is that first study your syllabus properly, study your theory properly in detail. अगर ढंग से आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो बहुत सारी चीजें आपको याद रहेंगी. एमसीक्यूज वाला पार्ट आप मिस नहीं करेंगे. अगर आपके थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में, तो आप एमसीक्यूज वाला पार्ट मिस नहीं करेंगे. मैंने जब सीएसएस में ऑप्ट किया था पॉलिटिकल साइंस को, तो एमसीक्यूज कोई अलग से प्रिपेयर नहीं किए थे. थ्योरी को ढंग से पढ़ा. थ्योरी को ढंग से पढ़ने से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं. हाउएवर, अगर आप इसकी स्पेसिफिक स्टडी भी चाहते हैं तो नो बिग डील. एक तो पिक किया करें सिलेबस के अंदर, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कि क्या एमसीक्यूज में आ सकता है. फिलोसफर्स की बुक्स आ सकती हैं, नाम आ सकते हैं, एरियाज आ सकते हैं, फिलोसफर्स के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं, फिलोसफर्स की थ्योरीज के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम्स के ऊपर आते हैं. एक तो वहां से पिक एंड चूज किया करें. दूसरा, आप लास्ट 10 इयर्स के एमसीक्यूज सॉल्व भी कर सकते हैं. तो वो 200 पेपर 1 के बनेंगे, वो 200 पेपर बी के बनेंगे, 2 के बनेंगे, तो रफली 400 एमसीक्यूज होंगे. उसमें से मोर और लेस 10-12 आपके पेपर में आ जाएंगे. ठीक है जी. पॉलिटिकल साइंस की बुक्स पे मैं बात करता हूँ. एमसीक्यूज पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली.
बुक्स का जहां तक ताल्लुक है, आई वुड सजेस्ट कि आप जो थ्योरी वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के, उसके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर अ बिगिनर तो आप कोई भी अच्छी किताब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर स्टार्ट कर लें। वो किताब मज़ुल हक की हो सकती है, वो किताब डॉक्टर सरवर की हो सकती है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब जो है वो एन आउटलाइन इन पॉलिटिकल साइंस वो हो सकती है। सारी किताबों में कॉन्सेप्ट्स की हद तक मोर और लेस डेटा एक जैसा है, लैंग्वेज का फर्क होगा, थोड़ी सी डिटेल का फर्क होगा, इस पार्ट में आपको एक जैसी चीजें ही मिल रही हों। जहां तक वेस्टर्न फिलोसफर्स का ताल्लुक है, वेस्टर्न फिलोसफर्स में जूड हार्मन है, फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, उनकी किताब है, टेक्स्ट बुक का दर्जा रखती है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड बुक। सेबाइन की बुक है लेकिन थोड़ी डिटेल्ड है, थोड़ी मुश्किल लगेगी आपको। M.A. चौधरी की किताब भी है मुस्लिम फिलोसफर्स के ऊपर, वेस्टर्न फिलोसफर्स के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। मुस्लिम फिलोसफर्स पे जब हम आते हैं तो मुस्लिम फिलोसफर्स पे हम सेजेस ऑफ एजेस नाम की एक किताब है M.A. चौधरी की मुस्लिम फिलोसफर्स के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। सुल्तान खान की किताब भी है मुस्लिम फिलोसफर्स के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये है। जहां तक पेपर 2 का ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का, कॉन्स्टिट्यूशंस पर हाउ स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय S.L. केले, वो भी एक किताब है मॉडर्न गवर्नमेंट्स की, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की, S.L. केले की किताब है। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस की या कंपैरेटिव गवर्नमेंटल सिस्टम्स के ऊपर हामिद खान की भी किताब है, वो आप देख सकते हैं। और इंडिविजुअल इन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर भी बुक्स हैं, डेटा है अवेलेबल जो हम देख सकते हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस वाला पोर्शन है वो वहां से कवर हो जाता है। Which one is best, IR or political science? Well, my answer to that is IR. Political science is easier, predictable, or easy to prepare. Like I always say, most of the philosophers are already dead. Theories have already been done upon. There's not much that is going on in political science as far as exams are concerned. तो आप आसानी से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर पैटर्न इस तरह का है कि आप 60, 70, 80% सिलेबस करके भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट करते हो। लाइक मुस्लिम फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर पर अलग अलग पोर्शन नहीं बने हुए, एक ही पोर्शन में दोनों पर सवाल आने। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशंस का भी इसी तरह से सूरत हाल है। तो इफ यू आस्क मी, पॉलिटिकल साइंस इज अ सेफर बेट एज अगेंस्ट IR, ऑल्दो IR भी पॉलिटिकल साइंस ही की ब्रांच है, बट everything under the sun comes under the syllabus of IR. कल कुछ दुनिया में हुआ है तो वो IR का सिलेबस हो सकता है, कल कोई और इवेंट दुनिया में हुआ है तो वो IR का सिलेबस हो सकता है। थेरीज एंड दूसरी चीजें हैं विच टू मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे थोड़ी सी वो ट्रबलसम लगेगी। मुझे वो सेटिस्फैक्शन एज ए CSS एस्पिरेंट चाहिए जो मुझे ये कह दे कि हाँ आज मेरी तैयारी हो गई है, मेरा सिलेबस कवर हो गया है। जो पॉलिटिकल साइंस में आपको मिल जाता है IR में थोड़ा मुश्किल होता है। पॉलिटिकल साइंस में एक और फायदा आपका ये भी है कि आप फिलोसफर्स पढ़ते हैं, प्लेटो से आइडियलिज्म सीखते हैं, आप रैशनलिज्म सीखते हैं, एरिस्टोटल से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सीखते हैं, पावर पॉलिटिक्स आगे सीखते हैं, मैकियावेली से सोशल कॉन्ट्रैक्ट सीखते हैं, हॉब्स, लॉक, रोसो वगैरह से कम्युनिज्म पर बात करते हैं। तो ये आपको एसए में और एल्सवेयर मदद देती है। स्टेट सिस्टम्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं, दुनिया के लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस को आप पढ़ते हैं, तो आप नेचुरली, चूंकि गवर्नमेंट और स्टेट को रन करने का इम्तिहान देने जा रहे हैं, तो वहां वो हेल्पफुल है। नेचुरली आप जब 10, 12, 15 फिलोसफर्स को, दुनिया के सियाने तरीन लोगों को पढ़ते हैं, 10, 8, 9 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स को पढ़ते हैं दुनिया के, तो नेचुरली आपका जो नॉलेज पूल है वो बदल जाता है, यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। अगर आप ढंग से उसको देख लें, यू स्टैंड वाइजर एंड यू स्टैंड मोर क्वालिफाइड स्टडिंग दैट। तो इफ यू आस्क मी, तो मैं ऑब्वियसली रिकमेंड उसी को करूँ। Well, wanted to ask how we need to study a topic, to which extent and depth, or should we have just surface knowledge, study thoroughly, platform, preparation? Well, बड़ा सिंपल है इसका आंसर आबिद। देखिए, पॉलिटिकल साइंस क्लासिक डेफिनेशन के हिसाब से स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है। तो इन सारे फिलोसफर्स को जिनको आपने पढ़ना है, एटलीस्ट आपको इनकी
theory of state पता होनी चाहिए, theory of government पता होनी चाहिए, what they think about government, ideal government, what they think about state and what they think about ruler. ये तीन चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, कम से कम आपने ये जरूर पढ़ना है. एंड देन एवरी फिलोसफर is famous for something. Every philosopher has something in unique. Plato, Aristotle, Machiavelli, Rousseau, Montesquieu, Bentham, हर एक का अपना है. जैसे बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के लिए मशहूर हैं, प्लेटो आइडियलिज्म के लिए मशहूर हैं, एरिस्टोटल रैशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए मशहूर है, मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है. तो ये चीजें जो इनको स्टैंड आउट करती हैं, जो इनका थोड़ा इम्तियाज है, जो अलग करती हैं इनको बाकी लोगों से, वो जरूर हमें पता होनी चाहिए. तो एटलीस्ट इतना पता होना जरूरी है. यस, पब्लिक एड का पॉलिटिकल साइंस के साथ लिंक है. ये नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है इफ यू आर विलिंग टू गिव इट टाइम, क्योंकि पब्लिक एड भी खासा डिटेल्ड सिलेबस है, काफी डिटेल्ड पेपर है वो. तो लेकिन लिंक बहरहाल है, नेचुरल कॉम्बिनेशन पब्लिक एड का पॉलिटिकल साइंस के साथ है. पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर फिलोसफी रखी जाए तो हेल्पफुल होगा. फिलोसफी कैसा सब्जेक्ट? फिलोसफी इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर सीएसएस, but obviously you'll have to have a taste for it, you'll have to have a knack for it. तो अगर आप का टेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो philosophy is a very good subject और स्कोर भी दे जाता है. Yes, मैंने खुद ऑप्ट किया है CSS में, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, देखा है obviously. तो the answer to that is yes. जी, पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लिंक है. पॉलिटिकल साइंस के साथ ऑब्वियसली आपकी जो पब्लिक एड है उसका लिंक है. पॉलिटिकल साइंस के साथ आप सोशियोलॉजी को भी वन वे और अनदर कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस विद यूएस हिस्ट्री ऑब्वियसली लिंक तो नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का है, हिस्ट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन है. लिंक तो एज सच नहीं होगा, बट बहरहाल आप रख सकते हैं, दोनों सोशल ब्रांचेस हैं. सेम गोज विद यूरोपियन हिस्ट्री. यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ डिस्कस होंगे, इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, लेकिन अदरवाइज कोई आपको वो नहीं मिलेगा. एक नैरेटिव के तौर पे आप साथ यूरोपियन हिस्ट्री रख सकते हैं. well, it all depends on you. आप टाउन प्लानिंग अगर रखना चाहते हैं तो सो बी इट, आप रख सकते हैं. एनी कनेक्शन इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस? इंटरनेशनल लॉ से पॉलिटिकल साइंस का डायरेक्ट एज सच कनेक्शन नहीं होगा. इंटरनेशनल लॉ वैसे भी पिछले कुछ सालों से डिफिकल्ट पेपर है, लेस स्कोरिंग है. वहां भी जो कॉन्स्टिट्यूशंस की हद तक थोड़ा बहुत लिंक होगा, अदरवाइज आपको वहां पॉलिटिकल साइंस के साथ उसका लिंक ऐसा नजर नहीं आएगा. ठीक है. यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सोशियोलॉजी है, कनेक्ट करती है पॉलिटिकल साइंस के साथ, क्योंकि सोसाइटी, स्टेट, ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करती है सोशियोलॉजी. पॉलिटिकल साइंस भी जो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को भी और ह्यूमन बिहेवियर को भी और सोसाइटी को भी डिस्कस करती है पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. पीएमएस और पॉलिटिकल साइंस, पीएमएस और सीएसएस की पॉलिटिकल साइंस सेम है या नहीं? थोड़ा सा आपको डिफरेंस आएगा. पीएमएस में ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, 5 सवाल आपको करने हैं. सीएसएस में ऑब्जेक्टिव हैं, 4 सवाल आपको करने हैं. पीएमएस में मिल, जेएस मिल, बेंथम, हेगल और मॉन्टेस्क्यू नहीं है, वो सीएसएस में है. ठीक है. पीएमएस में नहीं है, वो सीएसएस में है. और मुस्लिम फिलोसफर्स में एज सच कोई खास फर्क दोनों जगह नहीं है. To tell about the criteria we are going to follow during our classes. Criteria is very simple. We'll be having 1.5 hour class, 1.5 घंटे की क्लास होगी. Roughly 14 lectures I have designed. उनमें हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे. We'll discuss once your paper 1 is done, we'll have a test on that. We'll check that, evaluate you. Once we are done with paper 2, we'll have a test on that, evaluate you on that. In between that, if you want to make outlines, questions, or you want to get your stuff checked, I'll be available. You will be provided handouts, notes in soft form. आपसे share कर लिए जाएंगे. Go through them, read them, so that we can have
better discussion, more informed discussion on those handouts and notes, and obviously books भी आपको बताएंगे भी, और जो शॉर्ट फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है वो आपसे शेयर भी कर लेंगे. तो ये होगा, 1.5 घंटे की क्लास होगी. विल प्रोबेबली हैव इट 5 days a week, ताकि हम इसको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी ढंग से प्रिपेयर करें. इन बिटवीन दैट, थ्रू दैट, if you have any questions with regard to overall CSS, we can discuss that as well. ठीक है, ये हो गया क्राइटेरिया. पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड? वेल, if you prepare your political science subject along with your instructor and along with your lectures, तो फिर तो अगर हम 15 लेक्चर्स 3 weeks में कवर कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम वर्दी तैयारी 3 weeks में हो जानी चाहिए. एक एक्स्ट्रा वीक आप दे दें अपने आप को उसकी रिवीजन के लिए और उन सारी चीजों के लिए, तो 4 weeks आर मोर देन सफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट एग्जाम वर्दी तैयारी. ठीक है, फी, कोर्स एंड एवरीथिंग, यू कैन know about the fee and everything on that number that you can see on the bottom of your screen. The day is 17th from which we'll be starting our session. तो वहां से हम शुरू कर रहे होंगे. फी वगैरह आप वहां से पूछ सकते हैं इस फोरम से. ठीक है, according to which prospects we may differentiate between our paper and rest of the elements of unit text. Well, this is not a topic for orientation. I'll be delving upon that when we have a proper session, because it depends on question to question. Every question has its unique features and requirements, and weightage of the question also matters. Ke what part the examiner has asked for 5 marks and what part he expects you to do for 15 marks. तो फिर उस हिसाब से आपको उस सवाल के हिसाब से बताएंगे कि किस सवाल में हमने क्या करना है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको कैसे यूनिक बनाना है, कौन सी कोटेशंस आएंगी, कौन से बुक रेफरेंसेस आएंगे, क्या हमने इसके साथ करना है, कैसी प्रेजेंटेशन होगी, इंट्रो कैसा होगा, कंक्लूजन कैसा होगा. ऑब्वियसली वो ओरिएंटेशन की कम स्टफ है नहीं. Park Affair, I have been teaching Park Affair in the past, but let's just see if, depending upon time, if we have it, तो once we are done with this, तो probably we will. लेकिन फिलहाल हम इसी के साथ शुरू कर रहे हैं. बुक्स मैंने बताई हैं ऑलरेडी, मैं दोबारा बता देता हूं. जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें आपने मोर और लेस सारी किताबों का कंटेंट एक जैसा है. भले आप डॉक्टर सरवर की पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी की किताब ले लें, भले आप मजुल हक की ले लें, भले आप एन आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ले लें, सब में कंटेंट मोर और लेस एक जैसा है. थोड़ी डिटेल किसी में कम होगी, थोड़ी डिटेल किसी में ज्यादा होगी. जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उसके लिए जूड हार्मन मैंने बताई है. जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं उसके लिए सेजेस ऑफ एजेस का मैंने जिक्र किया है. या सुल्तान खान की किताब है मुस्लिम फिलोसफी के ऊपर, वो आसान है, छोटी है. जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो वहां से शुरू भी कर सकते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशंस वाला पोर्शन है वो एस.एल. केले की वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की किताब है, वहां से हम पढ़ सकते हैं. हामिद खान की कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस की किताब है, वहां से हम पढ़ सकते हैं. एंड ऑब्वियसली यू विल बी प्रोवाइडेड हैंडआउट्स, नोट्स वगैरह जिनमें ये ऑलरेडी स्टफ किया हुआ हो. नहीं, सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सारी किताबें सारी नहीं पढ़नी पड़ेंगी. इनमें सिलेक्टेड चीजें होंगी जो आपको पढ़नी है ऑब्वियसली. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत शॉर्टकट किस्म की चीज होगी. ऑब्वियसली CSS है, कंपटीशन है, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू sharpen your skills, you will have to go through this syllabus throughout. तो अगर आप ये कहें कि कोई चीज है जो तावीज आपको दिया जाएगा और अगले दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है जी. How the answer should stand out in paper if political science has no current scenario changes, how the paper should be attempted. बड़ा सिंपल है जी. It all depends on your interpretation of a philosopher. It all depends upon how you handle the statement of the question, how you manage your time, how you
draft your question, what you edit, what you not, and how you fix the references and quotations in it. And then it would depend how good your analytical power is. वो naturally develop होगी with better understanding of the subject. As far as philosophers are concerned, Muslim philosophers 5 at least, Western philosophers 10 at least हम करवाएंगे आपको. उनकी जो मेन थेरीज हैं वो आपको करवाई जाएंगी. कॉन्स्टिट्यूशंस हम पढ़ेंगे सारे, लेकिन जो जर्मनी मलेशिया है वो शायद उतनी डिटेल में ना करें क्योंकि वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है. बाकी जिन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे ऑब्वियसली. जैसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, उनका ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है, उनका जो गवर्नेंस बाय कमिटीज है वो इम्पोर्टेंट है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट सेनेट इम्पोर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर इम्पोर्टेंट है. ये हम करेंगे. तो ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन वेरी करेगा कि उसमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बुक्स 2-3 times नाउ. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज देख लें दोबारा, तो आपको आइडिया फिर से हो जाएगा. नॉट रियली रॉट लर्निंग. देखिए, डेफिनेशंस की हद तक रॉट लर्निंग दोनों जगह आपको करनी पड़ेगी. IR में भी करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस में भी करनी पड़ेगी, डेफिनेशंस की हद तक. आफ्टर दैट, बियॉन्ड द डेफिनेशंस इट्स कॉन्सेप्ट, बियॉन्ड डेफिनेशंस इट्स कॉन्सेप्ट. फिर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जिस हद तक उनको अच्छा कॉम्प्रीहेंड करेंगे, अच्छा उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकेंगे, अच्छी एनालिटिकल स्किल डेवलप कर सकेंगे, उतना बेहतर आपका पेपर होगा, उतना बेहतर आपका क्वेश्चन स्टैंड आउट कर जाएगा. तो इट्स नॉट रॉट लर्निंग एज सच. फैक्ट बुक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है खिजर. आपने सिंपल सबसे पहले अपने टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं. दुनिया में भले वो पाकिस्तान हो या दुनिया हो, एट एनी गिवन टाइम 5-6 चीजें दुनिया में इंपॉर्टेंट चल रही होती हैं, 5-6 चीजें पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट चल रही होती हैं. उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं. वो आपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं और फिर अखबार में जो उनसे रेलेवेंट डेटा आता है, उन स्पेसिफिक टॉपिक से रेलेवेंट चीजें आती हैं, वो आपने जॉट डाउन करनी है इन अ क्रोनोलॉजिकल फैशन, ताकि आपका एक डेटा बैंक, आपका एक नॉलेज पूल उन टॉपिक्स के ऊपर बनता जाए. एंड देन योर राइटिंग स्किल्स एंड योर एनालिटिकल स्किल्स कैन carve out a question out of that. You have the necessary data and you can write any question asked based on the knowledge you get from there. Dimensions are important. देखिए, ये अब ओरिएंटेशन में तो आपको नहीं बताया जा सकता. However, when we study the subject itself, तो naturally whatever the topic we conclude, we discuss कि इस पर किस डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा और इस टॉपिक को हमने कितने तरीकों से कवर करना है. तो ये जो चीज है ये वहां से हम सीख सकते हैं. ठीक है जी. What is meant by critical analysis? No. देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप क्रिटिसाइज करें उस टॉपिक के ऊपर. नो, बिल्कुल भी नहीं. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है थ्रेड बेयर एनालिसिस, इन डिटेल एनालिसिस. हर एक उस टॉपिक का अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बताना कि वो क्या है, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एग्जामिनर को दिखाना कि मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानता हूं. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट सब्जेक्ट, नॉट नेसेसरली क्रिटिसिज्म ऑन दैट टॉपिक और सब्जेक्ट. इसका मतलब क्रिटिसिज्म हरगिज नहीं. तो ये कुछ बुनियादी सी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की. आई होप आई हैव ट्राइड एंड answered your queries in a better manner. Rest of the things we will start with the formal session. When we will start with the actual syllabus.
यस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिखने के दो तीन तरीके हैं. एक तो इट शुड बी वन पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, एक से ज्यादा पैरों का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वन पैराग्राफ, 8 to 10 लाइंस. यू कैन राइट द क्रक्स विच द एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू. आप उसको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि हमें समझ आ गई है कि आपने हमसे क्या पूछा है, तो इसलिए मैं क्रक्स यहाँ लिख रहा हूँ. एक तरीका ये है. एक तरीका ये है कि आप प्रिल्यूड टू योर आंसर लिखते हैं कि ये मेरा आंसर होगा, उसका प्रिल्यूड ये है, इंट्रोडक्टरी ये है, इब्तदाइया ये है, स्टार्ट में यहां से ले. एक तरीका ये है. एक तरीका है सिंपल नैरेटिव फॉर्म में आप स्टार्ट कर देते हैं और देन यू फॉलो द लीड. तो ये डिफरेंट तरीके हैं पैराग्राफ्स लिखने के, जो आपको सूट करता है, जो या जो उस क्वेश्चन की डिमांड है, वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं. No, not necessarily. Political science does not necessarily demand a specific background of knowledge, background of certain degree or anything. A layman can also understand political science. Everything we do and hear and go through is politics. Or since this exam is based on the fact कि आपने जाकर स्टेट को और गवर्नमेंट को और इन मैटर्स को डील करना है, और इवन इंटरव्यू में भी इन पर आपसे क्वेश्चंस होने हैं, तो naturally you must have handy knowledge of political science, no matter you are a pure science student or a social science student. तो ये कोई इसके लिए कोई बैकग्राउंड नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है. आप लेमैन के तौर पर भी इसको कर सकते हैं स्टार्ट. ठीक है जी. पॉलिटिकल साइंस में एवरेज मार्क्स, वेल इट रियली डिपेंड्स कि आप की प्रेपरेशन कितनी अच्छी है, बट यू कैन स्कोर अप टू 160 इन इट. आराम, थोड़ी सी एफर्ट अगर आप दे दें, थोड़ा सा जोर अगर आप लगा दें, तो आ जाएंगे. एवरेज तैयारी पर 110 120 आते हैं, अच्छी तैयारी पर 140 प्लस आप जा सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड स्कोर कंसिडरिंग पॉलिटिकल साइंस एंड कंपेयरिंग इट विद एनी अदर 200 मार्क्स सब्जेक्ट इन दैट कैटेगरी. ठीक है. आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखें ना कि ये मेरा ओपिनियन है. ठीक है. आप जेनेरिक उसके ऊपर बहस करें, आप जेनेरिक उसको एक्सट्रैपोलेट जरूर करें, लेकिन इन माय व्यू, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, इस तरह की टर्म्स से अवॉइड करें, गुरेज करें. फर्स्ट पर्सन में वैसे भी नहीं लिखना चाहिए, तो ये ना लिखें. अदरवाइज आप लिख सकते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. ठीक है. थैंक यू हारिस. Is it wise to opt field subjects like chemistry, physics? Are they scoring? Rubab, it really depends how good you are on that. आप कितने brilliant हो उन subjects के ऊपर. If you're really brilliant, you can go ahead, you can score good. But if you're average, you might even fail those subjects. तो इसलिए I would suggest कि अगर तो बहुत ही strength है आपकी, बहुत अच्छा है आपका ये वाला साइड, तो डू गो फॉर इट. एक आधा सब्जेक्ट वहां से उठा लें. अगर उतना अच्छा नहीं है और एक ही जैसा है दोनों तरफ, तो फिर सेफ सब्जेक्ट की तरफ जाएं जो आपको फेल एटलीस्ट ना करें. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल अगर आपका है तो यू कैन आस्क मी. इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, तो वी कैन मूव forward. Being an engineer of political science, IR, math course, yes, you can. There's nothing wrong with that. But math के लिए भी I would suggest कि आप थोड़ी कोचिंग मैथ के लिए भी लें, CSS की मैथ के लिए, ताकि आपका वो ब्रश अप हो सके, पॉलिश हो सके आप इसके. Yes, मेरी सबमिशन यही है कि फर्स्ट पर्सन नरेशन को अवॉइड किया जाए, थर्ड पर्सन में लिखा करें, ज्यादा बेहतर है. लेट अस, लेट मी डू दिस, लेट, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय व्यू, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. इस तरह की जो टर्म्स हैं, इस तरह के जो फ्रेजेस हैं, इन्हें अवॉइड करें. ठीक है. पेपर में आउट देखिए, ये अगेन मैं ये बता देता हूँ, ये इट कम्स अ लॉट. अगर आप लिखना जा रहे हैं, अगर आप हेडिंग्स के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो स्टार्ट में साइनॉप्सिस बनाने की जरूरत नहीं है.
अगर आप हेडिंग में पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको साथ में साइनॉप्सिस शुरू में बनाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर दैट. वो जो 5 मिनट्स आपने वहां खर्च करने हैं वो 5 मिनट्स आप लगाएं अच्छा कंटेंट पेपर में लिखने के लिए. अगर आप नैरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, यानी पेपर के अंदर आंसर के अंदर हेडिंग्स नहीं देते, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर देते हैं, तो फिर आप शुरू में साइनॉप्सिस बनाएं. एग्जामिनर का टाइम बचाएं, उसको कन्वीनियंट करें, उसको बता दें कि हाँ मेरे आंसर में, मेरे पैराग्राफ्स में इन टॉप हेडिंग्स पर बात हो रही है. तो अगर आप हेडिंग वाइज लिखते हैं, साइनॉप्सिस स्टार्ट में ना बनाएं. अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, हेडिंग्स नहीं देते हैं आंसर में, तो फिर शुरू में साइनॉप्सिस बना दें. दैट इज अ गुड मूव. ऐसे ऑब्वियसली 100 मार्क्स का है और एक ही है, तो उसमें आउटलाइन जो कि मांगी भी जाती है, तो हम उसमें बनाते हैं. साइकोलॉजी आप रख सकते हैं मेडिकल बैकग्राउंड के साथ, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप प्रिपेयर उसके लिए अच्छा करते हैं या नहीं करते. जनरली एक क्वेश्चन, वैसे तो ये डिपेंड करता है मोमना कि वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बट 4 to 6 पेजेस एटलीस्ट आपने लिखने हैं 20 मार्क्स के लिए, बोथ साइड्स रिटन. 4 to 6 पेजेस बोथ साइड्स रिटन होने चाहिए 20 मार्क्स के लिए. मेरी सजेशन है 4 एटलीस्ट, 6 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. एंड 2 to 3 फॉर 10 मार्क्स नोट्स. 2 to 3 फॉर 10 मार्क्स नोट्स. यस, 33 एटलीस्ट लेने दोनों में जरूरी है. वो आपने लेने हैं एटलीस्ट, तो दैट विल डू. जी, यस. जी, यस, आई डू. Okay, ji, I think I have answered the questions so far, so I'll call it a day. Political science के अलावा well, I do teach political science, US history, Pakistan affairs, and current affairs. These are the subjects that I teach. ठीक है जी. नहीं, जरूरी नहीं है. मार्कर आप एक से ज्यादा साथ ले जाएं, डजंट मैटर, मार्जिन्स के लिए या उसके लिए. और साइनॉप्सिस का जो मैंने तरीका बताया है वो उतना काफी है. ठीक है. आप यस, ये डिपेंड करता है. अगर आप हेडिंग्स लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है. हेडिंग्स के साथ में ज्यादा कन्वीनियंट है, इजियर है एग्जामिनर के लिए अंडरस्टैंड करना भी, और आपके लिए भी क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक क्रोनोलॉजी डेवलप करना क्वेश्चन की, वो आसान है. जो नैरेटिव फॉर्म में लिखना, इफ यू आर नॉट रियली गुड एट दिस स्किल, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए. ठीक है. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. यस, बोथ साइड्स रिटन. 4 पेजेस भी बोथ साइड्स रिटन होंगे मिनिमम. अगर आप 6 तक जाते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, तो 6 पेजेस भी बोथ साइड्स रिटन होंगे. बट इट रियली डिपेंड्स ऑन कि पूछा क्या गया है, सवाल क्या है, उसके हिसाब से आपकी डिटेल होगी. ठीक है. Thank you very much. Thank you very much. Let's call it a day and see you when I see you. Thank you.